अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे। उम्मीद है सब अच्छी ईद गुज़ार रहे होंगे। ये हमें मैंगो मिले हैं लेकिन मैक्सिको के हैं, पाकिस्तान के नहीं। तो और आखिरकार हमें फैनी मिल ही गई इस दफ़ा। लास्ट ईयर ईद में फैनियाँ नहीं थी मिली, तो बच्चों को बड़ी पसंद थी। तो मैं क्या करती हूँ, 2 दिन पहले लेके आए थे पाकिस्तानी स्टोर से। तो उनको मैं क्या करती हूँ ना, मैं इनको नीचे टिशू रख के, पेपर टॉवल रख के, काफ़ी ज़्यादा पेपर्स रख के, तो मैं इनको माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट लगवा लेती हूँ और ये बिल्कुल गर्म हो जाएं। जब गर्म हो जाती हैं तो फिर उनका सारा जो घी है ना वो निकल जाता है, ऑयल जो होता है, क्योंकि ये बहुत ऑयली होती हैं। जब दूध में या दूध पत्ती में डालो तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल ऊपर आ जाता है। तो मैं इनको ऐसे ही करती हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने इनको ऐसे रख दिया था और सारा ऑयल जो था वो नीचे टिशू में और जो पेपर टॉवल था उसमें सारा एब्जॉर्ब हो गया था और बिल्कुल लो फैट हो गई थी, बिल्कुल देखें ड्राई हो गई थी। तो फिर वो दूध के ऊपर या दूध पत्ती के ऊपर फिर वो ऑयल भी इकट्ठा नहीं होता, बड़े आराम से मज़े से बच्चे खा लेते हैं। तो फिर हम दूध पत्ती के साथ हमने थोड़ी सी फैनियाँ खाई और फिर हम ये नमाज़ के लिए निकलना था, क्योंकि नमाज़ जो थी वो डाउनटाउन में आरबीसी कन्वेंशन सेंटर में थी। तो इस दफ़ा तो काफ़ी जगह पे नमाज़ पढ़ाई गई है, तो हमें निकलना था। फिर नमाज़ के लिए हम निकले और उधर डाउनटाउन में पार्किंग का बड़ा मसला होता है, तो टाइम से पहुंचना था ताकि नमाज़ जो थी वो मिस ना हो जाए। तो हम लोग लेकिन टाइम से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम टाइम से पहुंच गए थे और फिर हमने नमाज़ पढ़ी, टाइम से नमाज़ पढ़ी फिर। I also want to acknowledge that we have been helped tremendously the past couple of days in preparing for Eid prayer by the Winnipeg Police Service. And we have with us representation from the Winnipeg Police Service from the Community Relations Department, Inspector George Labustier, Constable Tracy Patterson, and Constable Moses Simiyu. And you see them in their beautiful uniforms. They're walking around, greeting people. I'm sure to stop by and say hi to them as well and thank them for their support and for their help. Our Khatib for today will be Sheikh Ismail Mukhtar, who has been doing da'wah in the community for many, many years. He actually wrote a book on the history of the community in Manitoba. The book is called Manitoba Muslims, The History of Resilience and Growth. The book is available as a Eid special for you to buy for $50, inshallah, at the FIA booth by the entrance. And it makes a great Eid gift to friends and family. Cash to any of the volunteers. You can use your credit or debit machine. You can also e-transfer to the email give, that's GIVE give, at miaonline.org. And for those of you who are joining us on the live streaming, you can donate by e-transfer or by going to the website and donating online as well. Again, thank you very much. We're going to be delaying the prayer. Inshallah, as soon as we're ready, we'll proceed. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Everybody, please stand up. On the men's side, we're going to move the line forward. So everybody, including the first line, please move forward.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين والسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين ولله الحمد. My dear brothers and sisters, today, on the day of Eid al-Adha, we gather. Today we celebrate. Today we rejoice. Today we begin our celebration as we always do by praising, thanking, glorifying our Lord, our Creator, our Sustainer, the most compassionate, the most Akbar وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. नमाज के बाद हम लोग फिर मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उसने ब्रंच पे हमें इनवाइट किया हुआ था। सेंट विटाल में रहती हैं। तो नमाज के बाद हम लोग फिर उधर गए और सबके साथ गपशप हुई। उसके अम्मी अबू पाकिस्तान से आए हुए थे, तो उनके साथ भी फिर मुलाकात हुई और गपशप हुई। बड़ा मज़ा आया। इस दफ़ा कनाडा में काफ़ी जगह पे जो ईद की नमाज़ हुई हैं, बाहर पार्क में भी हुई हैं, मस्जिद में भी और आरबीसी कन्वेंशन सेंटर में भी। नहीं तो कोविड की वजह से बहुत मुश्किल थी। ऑनलाइन नमाज़ पढ़ते थे और वो तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने थोड़ा सा वो उसका कम किया और नमाज़ प्रॉपर पढ़ी गई है। और ये फिर उसने मुझे हिना भी लगाई, बड़े प्यार से उसने मुझे मेहंदी लगाई। उसका इतना कलर आया, बहुत डार्क कलर आया। वो पाकिस्तान से लेके आई थी उसका बहुत अच्छा कलर था। जो इधर से पाकिस्तानी स्टोर से लाए थे उसका तो कोई अच्छा कलर नहीं था आया, बिल्कुल ऐसे वो लाइट सा कलर था। लेकिन ये बड़ा अच्छा कलर आया, डार्क कलर था। फिर इसके बाद गपशप की और हम लोग घर वापस आ गए। तो घर आके खाना बनाना था। फिर आज चिकन ही बनानी थी, चिकन कढ़ाई बनानी थी, क्योंकि बकरा जो है वो पहले दिन नहीं इधर देते, दूसरे या तीसरे दिन देते हैं। वो जो हलाल ज़बीहा हाउस वाले हैं वो उसको काट के तो 1-2 दिन वो उसको लटकाए रखते हैं, 1 दिन कम अज़ कम। तो फिर उसके बाद वो देते हैं ताकि उसका पूरा ब्लड निकल जाए। फिर मैंने आके चिकन कढ़ाई बनाई। और ईद वाले दिन कलेजी ना बने या फिर इस तरह तो फिर मज़ा नहीं आता ना, कि कुर्बानी जो है उसकी एक बरकत भी होती है। और ये बड़ी ईद जो है ईद उल अज़हा, इसका तो कुर्बानी से ही मज़ा आता है। तो उसके बाद फिर मैंने खाना बना के हम लोग तो काफ़ी वो बाहर अच्छा मौसम था, हम लोग थोड़ा वॉक के लिए निकले थे। तो इस दफ़ा ईद का बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हम नमाज़ के लिए गए थे। पहले तो नमाज़ के लिए जा ही नहीं थे सकते। तो इसमें मैंने सबसे पहले चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। उसके बाद मैंने ऑनियन फ्राई किए हैं ऊपर। फिर जो उसमें नमक मिर्च मसाला सारा डाल के, हल्दी डाल के इसकी फिर मैंने बनाई की है अच्छी तरह। इसको मैंने भुन बना लिया है, क्योंकि चिकन को जितनी देर तक अच्छी तरह भूने ना तो तसल्ली नहीं होती। तो चिकन को हमेशा अच्छी तरह भूनना चाहिए, क्योंकि इसको अच्छी तरह कहते हैं कुक करके तो फिर खाएं, बिल्कुल भी इसको कच्चा ना खाएं। तो फिर मैंने चिकन कढ़ाई की मैंने अपलोड की हुई है रेसिपी, मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये मैंने योगर्ट में थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड करके थोड़ा सा तो मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए हैं। तो बस झटपट वाली मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। तो झटपट चिकन कढ़ाई वाली जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। अगर किसी को बनानी है तो वो बना सकते हैं। तो चिकन को हमेशा जो है वो फ्राई करके यूज़ करें। ये मैंने थोड़ा सा वो मैंने बना के रखी हुई है, फ्रीज़ की हुई है मैंने बादाम की जो पेस्ट है,
इससे बहुत मज़ेदार चिकन कढ़ाई में जो मसाला है वो ग्रेवी जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है और फ़ायदेमंद भी होती है। बच्चे जो चीज़ें नहीं खाते ना उनको फिर इसी तरह ही चकमा ही देना पड़ता है, क्योंकि बादाम वगैरह ये नहीं इतना शौक़ से खाते। तो इसलिए मैंने वो पेस्ट बना के तो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है। तो मैं चिकन में, इनको चिकन पसंद है तो मैं चिकन में डाल लेती हूँ। तो ये मैंने पेस्ट डाल लिया। तो उसके बाद मैंने फुलके बनाए थोड़े, तो हमने फिर खाना खाया, फिर हम वॉक के लिए निकल गए। भाई मौसम बहुत अच्छा था, खाने का बहुत मज़ा आया सबको। चिकन कढ़ाई का बहुत टेस्टी थी। सब बोले कि मसाला इतना मज़ेदार है, तो लेकिन सीक्रेट जो था वो नहीं था पता ना कि क्या है। तो सीक्रेट यही है, मैं आप सबको भी बता रही हूँ कि जो बादाम की थोड़ी सी पेस्ट है ना वो ज़रूर डाला करें। तो बाहर बहुत प्यारा मौसम था और बाहर गार्डन में बहुत ज़्यादा फूल खिले हुए हैं आजकल, और ग्रीनरी हर साइड पे ग्रीनरी ही नज़र आती है और बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ये गुज़री हमारी ईद। अल्लाह हाफ़िज़।